Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be enjoying rainy season. Today we are going to start our chapter number 2, which is structural organization of life. जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमें इस चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल. ओके, तो वी ऑल know that all living organisms are made up of cells, and by the union of these cells a tissue is formed, and by the union of these tissues an organ is formed, and by the union of organs a system is formed, and if we combine many systems an organism is formed. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स और organisms के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, today we have two topics here. One is discovery of cell and other is cell theory. Our first topic is discovery of cell. All living organisms are made up of one or more cells. अब सवाल पैदा होता है हमें कैसे पता चला? Of course with the help of observation, and these observation started with the discovery of magnifying glass and later on with the development of microscope. This microscope was invented by Galileo. Microscope is an instrument which can magnify the object up to 1000 times of its original size. यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो छोटा सा हो, जो कि नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमको 1000 टाइम्स बड़ा दिखता है. ओके, in 1610 Galileo, an Italian astronomer and physicist, developed microscope to observe small organisms. After that, in 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lenses called compound microscope and examining a slice of cork under it. 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक लेंस के बजाय कई लेंसेस को कंबाइन किया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, और उसके अंदर उसने एक कॉर्क के स्लाइस को एग्जामिन किया और उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो हैं हनी बी कॉम लाइक चैम्बर्स हैं. तो यहाँ से एक सेल का कॉन्सेप्ट पता चला. In 1842, Tetrachet boiled plant material in nitric acid and then examined under microscope. It was found to consist of cell. रॉबर्ट ब्राउन ने तो हमको सेल का स्ट्रक्चर बताया था. अब उस पर फर्दर काम हुआ कि इस सेल के अंदर क्या ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है, तो उस सिलसिले में टेट्रोशेट ने प्लांट मटेरियल को नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया और उसमें उसको एग्जामिन किया तो उसको वहाँ से ऑर्गेनल्स का पता चला. ठीक है, उससे आगे हमारे पास आता है 1831. In 1831, Robert Brown discovered a spherical body, the nucleus, in the cells of orchids. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड्स के सेल को एग्जामिन किया तो वहाँ पर उसने न्यूक्लियस देखा विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. ठीक है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. आफ्टर दैट in 1838 a German botanist Scheliden proposed that all plants are made up of cell. Scheliden एक botanist था जो कि पौधों पे काम करते हैं, तो उसने पौधों पे काम किया और उसको एग्जामिन किया तो उसके बाद उसने प्रपोज किया कि all plants are made up of cell. In 1839 another German zoologist Theodor Schwann stated that all animals are made up of cells. He was a zoologist, so he studied animals. उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि तमाम एनिमल्स में सेल मौजूद हैं. ठीक है, उसने और भी ऑब्ज़र्व किया कि सब एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद है, लेकिन उसने ये देखा कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, और सेल वॉल किस में मौजूद होती है? प्लांट सेल में. तो इस तरह से हमको डिफरेंस पता चला प्लांट्स और एनिमल सेल में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. इन 1858
Rudolf Virchow stated that new cells come only from other cells. That is, animal cells come from animal cells and plant cells from plant cell. Rudolf Virchow ने बताया कि हर न्यू सेल जो है सिर्फ अपने जैसे सेलों से बनता है, यानी प्लांट सेल हमेशा प्लांट सेल से बनेगा, एनिमल सेल हमेशा एनिमल सेल से बनेगा. ओके, ऐसा नहीं होगा कि प्लांट सेल में से एनिमल सेल्स बनना शुरू हो गए या एनिमल सेल्स में से प्लांट सेल बनना शुरू हो जाए. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक which is second topic of this chapter, the salient feature of cell theory, which is combined effort of Skeleton, Schwann and Virchow. Okay, the salient feature of cell theory are as under: number 1, all living organisms are composed of one or more cell, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं. नंबर 2, the cell is the smallest basic structural and functional unit of organism. सेल क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा हिस्सा सेल कहलाता है. उसके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेल से बना हुआ होता है और जितने भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी सेल के ज़रिए होते हैं. नंबर 3, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो इस ऑर्गेनिज्म में पहले से सेल्स हैं उनमें डिवीजन होती है तो नए सेल बनते हैं. ओके, नाउ वी हैव completed our 2 topics here, and for your copy work I have given PDF file.